Hi friends, Dvip Modi here from Modi Academy. ठीक है? So today we will learn about a Heron's formula. What is the use of Heron's formula? What is a semi-parameter? Why it is used? So we have already learned and see in the part one that if we are knowing any three sides of a triangle, and if we are not knowing that which kind of a triangle is this, it is an isosceles triangle, scalene triangle, or a equilateral triangle. So we can find any kind of the triangle's area by using a Heron's formula. It's very simple. If there is some square or if there is some a trapezium shape, so what we have to do, we have to divide it into the two triangles and we have to find individually the each triangle value, and we can add it and get the total surface area, or we can see the total area of any triangle, rectangle, trapezium, hexagon, any kind. But the thing and the most important thing is we have to make or divide all the parts into the triangle only. Okay, so in 12.1 we have already learned that semi area according to the Heron's formula for triangle, it will be equals to under root s minus a, s minus b and s minus c respectively. ठीक है, तो s क्या होता है? तो s is a semi parameter and it is equals to the sum of three sides upon 2. So if we are having a perimeter, so perimeter upon 2 भी semi parameter ही होगा. ठीक है, so now we are starting exercise 12.1. In that we have given question number 1 as it is that a park is in a shape of a quadrilateral. ठीक है, तो हमको एक पार्क दिया है which is shape of a quadrilateral and उसमें बोला है कि एंगल C is a 90 डिग्री. ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल C 90 डिग्री है, तो मैं कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा पर जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा. मींस इधर मैं A लिखता हूं देन इधर मैं B लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं इधर में A लिखूंगा, इधर में B लिखूंगा, देन इधर में C लिखूंगा एंड देन इधर में D लिखूंगा. ठीक है, तो हमको लेंस दिया है कि AB is equals to 9, मतलब this side is 9, then BC is 12, मतलब this side is 12, then AD, तो AD हमको क्या दिया है, 8 दिया है एंड CD हमको 5 दिया है. ठीक है, तो अब मेरे पास तो है क्वाड्रिलेटरल बट मेरे को तो हेरन्स फार्मूला यूज करना है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई एम ड्राइंग अ लाइन लाइक दिस. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, अब देखो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है, दो साइड पता होगी तो तीसरी साइड पता चली जाने वाला है. ठीक है, so if I am applying a right angle Pythagoras theorem in triangle BC and D, therefore we can say that it will be BC square plus CD square is equals to BD square. मतलब कि it will be having a 12 square plus 5 square is equals to, we can say, the diagonal square, so it will be B of D का square आ जाएगा. ठीक है, तो 12 का square होता है 144 plus 5 का square होता है 25 is equals to, we can say, BD square. That implies therefore BD square equals to 169 and BD is equals to directly 13. तो मेरे को ये क्या मिल गया, 13 मिल गया. चलो अब तो मेरे को सबकी साइड पता हो गई. So I will be finding the area of this and I will be finding the area of this, and what I will be doing, I will be doing the addition of this. Okay, so total area, we can say the total is equals to, we can say, area of it will be BCD plus area of it will be ABD. ठीक है, तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका इसके लिए हेरॉन्स फार्मूला यूज करना हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करना हो तो इट्स नॉट प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. इसमें जो BCD है वो राइट एंगल है, उसका मतलब कि एरिया ऑफ BCD क्या होगा, तो कि एरिया ऑफ इट विल बी BCD इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस into altitude or we can say height, so it will be half into base क्या है इसका, तो कि base is equals to 5, height क्या है उसका 12 है, मतलब कि 2 इधर 6 हो जाएगा. मेरा आंसर 6 5 30 and all the values are centimeter, so 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. अब एरिया ऑफ ABD, तो अब एरिया ऑफ ABD का तो मुझे कुछ नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग कि सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे. तो सेमी पैरामीटर फॉर एरिया ऑफ ABD it will be 9 plus 8 plus 13 and whole divided by 2, it will be equals to, we can say, 30 divided by 2 and my semi perimeter will become 15. Okay, तो मेरे को semi perimeter 15 मिल गया. Therefore according to the Heron's formula, area of A, B and D will be equals to, we can say, under root of, and it will be what, it will be 15s into s minus a. मतलब कि 15 minus 9 क्या होगा फ्रेंड्स, it will be 6. 15 minus 8 क्या होगा, तो कि it will be 7 and it will be 15 minus 13 it will be equals to 2. मतलब अब मैं जब इसका रूट निकालूंगा
तो इसमें से 3 2 निकलेगा, इसमें से निकलेगा 2 2 निकलेगा एंड सब कुछ कॉमन निकलने से हमको आंसर क्या मिलेगा, तो कि इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 35.49 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो क्या कर रहा है हमको समेशन, तो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 30 प्लस 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर is equals to what? It will be equals to 65.50 and it will be having a centimeter square. Okay, so आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है कि आपको दो ट्रायंगल है तो उसका जो हमको पेरीमीटर मिलेगा, सेमी पेरीमीटर मिलेगा, उससे एरिया फाइंड करना है। इफ राइट एंगल ट्रायंगल है तो सेमी पेरीमीटर वाला मेथड लेंदी हो जाएगा, उससे अच्छा डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड and you can find the solution. Okay, so if you have any doubts you can comment me in a comment box and there will be a obvious video on my page which is at every morning, it is on a 9 o'clock, so you can see for 9 10th 11th and 12th on my page. Okay, okay, so now question number 2, what we have given in question number 2 is, question number 2 हमें क्या बोला है, we have given find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, CD is equals to 4 centimeter, DA is given and this all means हमको एक पूरा quadrilateral दिया, इसमें हमको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इधर ऐसे लिख देंगे A B C and D। अब उसमें ए बी क्या दिया है, ए बी हमको 3 दिया है, बी सी क्या दिया है, बी सी इज इक्वल टू 4 दिया है, देन सी डी हमको क्या बोला है, सी डी हमको बोला है 4 एंड वापस डी ए क्या बोला है, हमको 5 बोला है एंड हमको ए सी डायगोनल दिया है एंड ए सी डायगोनल क्या दिया है, तो कि ए सी डायगोनल हमको 5 दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले तो दोनों का हमको तीन साइड्स पता है, मतलब मैं टोटल एरिया क्या बोल दूंगा, टोटल इज इक्वल टू एरिया ऑफ वी कैन से ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट विल बी ए डी एंड सी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे फाइंड कर देंगे, तो हमको सेमी पेरीमीटर ऑफ, पहले मैं एरिया ऑफ एबीसी फाइंड करने का ट्राई करता हूं, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ एबीसी के लिए क्या आएगा, तो इट विल बी 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, 12 डिवाइड बाय 2, सेमी पेरीमीटर हो गया 6। Therefore area of we can say A B C is equals to क्या होगा, अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। उसका मतलब कि S क्या है मेरा, तो क्या 6 है, S माइनस A मतलब कि S माइनस 3 क्या होगा, तो क्या इट विल बी 3, S माइनस 4 मतलब क्या होगा 2 होगा एंड S माइनस 5 इट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 3 2 6, ये भी 6, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, इट विल बी 6 एंड ऑल द साइड्स आर इन सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट इट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या, तो कि एरिया ऑफ मेरे को फाइंड करना है, एरिया ऑफ एडीसी, ठीक है। तो एरिया ऑफ एडीसी क्या होगा, तो कि इसके लिए मेरे को सेमी पैरामीटर चाहिए होगा, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, तो कि इट विल बी 5 5 एंड 4, सो आई एम एडिंग 5 प्लस 4 एंड डिवाइडिंग बाय 2, so it will be 14 by 2, so सेमी पेरीमीटर हो गया 7, ठीक है। सो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी 7 into 7 minus 5 2, 7 minus 5 2 and 7 minus 4 is 3, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा वो 2 का निकलेगा बाहर, सो इट विल बी 2 रूट 21। तो आप लोग इफ आपको नहीं पता है रूट 21 एंड रूट का मेथड नहीं आता है, तो आई विल बी पोस्टिंग अ न्यू वीडियो फॉर दिस। ओके, सो इसका हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी इक्वल्स टू 9.16 एंड 5। अब एक अप्रोक्सीमेशन लगाने की चीज कैसे होता है, क्योंकि 16 एंड 25 दो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका मतलब कि मेरा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब ये 4.5 के आजू बाजू ही होगा, ठीक है, बिकॉज 16 से प्लस 5 है एंड 25 से माइनस 4 है, मतलब कि ये 4.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये कितना है, तो क्या 4.075 जितना कुछ आएगा, तो इट विल बी 9.65 एंड इट विल बी हैविंग इन अ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इधर देखते हैं, तो वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट 9.5 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब टोटल क्या होगा, तो क्या टोटल इट विल बी इक्वल्स टू वी कैन से दैट 6 प्लस 9.165 and it will be having a centimeter square, so we can say that the total answer will be 15.165 and it will be also having a centimeter square, मतलब कि टोटल एरिया हमारा क्या आ गया, टोटल एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी will be equals to we can say 15.165 centimeter square respectively, ठीक है। ओके, नाउ सो हमको क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या बोला है, वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 3 एज राधा इज मेकिंग अ प्लेन
and he is मेकिंग अ एरोप्लेन विथ अ पेपर। सो हमको हमारे पास बहुत सारे एरियाज में हमको डिराइव करना है, ठीक है। सो हमको इसमें पहला क्या बोला है, हमको ये एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल सिमेट्रिक है, ये जो पार्ट टू है वो हमारा रेक्टेंगल है, एंड ये जो है ना हमारा नीचे ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का हाइट हमको पता होना चाहिए एंड ट्रेपेजियम का एरिया भी हमको पता होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन 8th एंड वी विल लर्न इन 9th आल्सो, ओके। सो हमको जब अब एरिया हमको सभी पार्ट्स के अलग अलग फाइंड करना है, तो मैं इधर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 एंड एरिया 5 करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एरिया 1 हमको ये वाला गिवन है, उसका मतलब कि हमारा जो एरिया में इसका स्मॉल प्रोटोटाइप जैसा बनाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हम एरिया फाइंड किसका कर रहे हो। तो हमको इधर 5 दिया है, इधर 5 दिया है, जो नीचे का है ना वो 1 है, बिकॉज इधर नीचे आपको लिखा है कि इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसका मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा, तो कि अंडर रूट एक ही फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। तो हम लोग इधर s फाइंड करते हैं। s हमारा क्या हो जाएगा, s विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी 5 प्लस 1/2, इट विल बी 11/2 एंड आंसर विल बी इक्वल्स टू 5.5, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसका एरिया निकालते हैं तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ, इधर 5.5 तो आएगा ही आएगा, उसका 5.5 माइनस ए मतलब कि 0.5 हो जाएगा, वापस इधर 0.5 आएगा, ठीक है। तो 2.5 आया एंड 5.5 माइनस 1 करूंगा तो इधर मेरे पास 4.5 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जब मैं एरिया निकालता हूं तो मेरे को आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2.48 इन इट विल बी हैविंग अ सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एरिया 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या, क्योंकि हमको एरिया 2 फाइंड करना है, मतलब क्या कि जो हमारा रेक्टेंगल है, तब हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो कि इट विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ बोल सकते हैं। मतलब हमारा जो लेंथ है वो हमारा 1 सेंटीमीटर एंड विड्थ हम बोल सकते हैं कि इट इज 6.5 सेंटीमीटर इन टोटल। हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल बी 6.5 एन सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको दो एरिया तो मिल गया। अब इफ हमको थर्ड एरिया फाइंड करना है तो हम लोग थर्ड एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव गिवन द एरिया ऑफ थर्ड साइड, मतलब कि क्या, इट इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का प्रोटोटाइप में ड्रॉ करता हूं तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, मतलब कि ऐसा ऐसा आपको आएगा। इफ ये 1 है तो नीचे का भी 1 होना चाहिए, मतलब कि ये और ये साइड क्या होगा, तो इट विल बी 0.5 एंड 0.5, ठीक है। तो अब आप लोग हाइट फाइंड कर रहे हो तो इट्स गुड, नहीं कर रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.5 एंड 1, तो नीचे का 2 हो गया, ऊपर का 1 तो है, मतलब कि हमको ये जो हाइट है ना ये हमको फाइंड करना है। उसका मतलब क्या, कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इधर 90 डिग्री बन रहा है, तो इट विल बी 0.5 का स्क्वायर प्लस हाइट को मैं h स्क्वायर बोलता हूँ इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। उसका मतलब कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा एंड इट विल बी 0.75। जब मैं इसका ये h स्क्वायर की वैल्यू मेरी आई तो h की वैल्यू क्या आएगा, तो कि h की वैल्यू मेरे पास आएगा 0.75 का रूट निकालूंगा तो इट विल बी समथिंग अराउंड 0.86, ठीक है। उसका मतलब कि आपका एरिया क्या हो जाएगा, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, क्योंकि इट विल बी हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, मतलब नीचे हमारा 2 है, ऊपर हमारा 1 है, उसका मतलब कि सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इज वी कैन से 3 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा विद हाइट तो इट इज 0.86। उसका मतलब कि मेरे को एरिया क्या मिलेगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू वी कैन से 1.3 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। एंड एरिया 4 एंड एरिया 5 है वो दोनों क्या है, सेम है। तो इसमें हमको प्रोटोटाइप दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है वो 6 है, ये हमको पता नहीं है एंड दिस इज गिवन एज 1.5, ठीक है। अब 6 है 1.5 है तो हमको अल्टीट्यूड और वी कैन से द हाइपोटेनस हमको दिया नहीं है, अल्टीट्यूड एंड बेस हमको दे दिया है, तो ये तो 90 डिग्री बन रहा है। उसका मतलब कि ये तो बहुत इजी फॉर्मूला हो जाएगा कि आप लोग जब करते हो ऐसा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बिकम वेरी वेरी इजी, दैट इट विल बी नाउ हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, मतलब कि हाफ इंटू बेस हमारा क्या है 6 है एंड अल्टीट्यूड का हमारा क्या है 1.5 है, इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 जा, मतलब कि 3 इंटू 1.5 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इट विल बी 4.5 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा एक नहीं है, ऐसे कितने हैं, दो। तो एरिया ऑफ 4 एंड फिफ्थ, मतलब क्या कि 2 इंटू 4.5, मतलब कि टोटल मेरा आंसर आएगा 9 ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका मतलब कि टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू वी कैन से, सबसे पहला फर्स्ट वाले का एरिया
फर्स्ट वाले का एरिया हमने फाइंड किया था, इट विल बी इक्वल्स टू 2.48। देन सेकंड रेक्टेंगल था, उसका हमने एरिया फाइंड किया था, इट विल बी 6.5। थर्ड वाले का हमने फाइंड किया था, इट इज 1.3। फोर्थ वाला है, फोर्थ एंड फिफ्थ, उसको मिला के मेरा जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18 एंड 18 प्लस 48 प्लस 3 करेंगे तो हमको कुछ आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, it will be 19.4 and centimeter square। मतलब कि total paper used by Radha in making this whole plain paper is equals to 19.4 centimeter हमको use होगा, ठीक है। So if you have any doubts you can comment me in the comment box so I can clear your doubts very easily, okay। So now the next question is given that it is question number 4, that triangle and parallelogram have same base and same area if the sides of triangle are this मतलब हमको बोला है कि बेस दोनों में सेम है, एरिया भी सेम है, तो हमको कोई वैल्यू अननोन दिया होगा वो हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो पैरेललोग्राम होता है ना, उसका हमको एरिया का फॉर्मूला पता होना है, ठीक है। एरिया इधर हमको बोल दिया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, तो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला से, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो कि इट विल बी साइड्स इनटू हाइट। मतलब हमको पैरेललोग्राम का बेस क्या दिया है, बेस इक्वल्स टू 28, मतलब कि 28 इंटू हाइट आएगा इज इक्वल्स टू हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि इधर हमको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है वो हमको क्या दिया है, तो कि हमको तीन साइड्स दिया है उसका 26 28 एंड 30। उसका मतलब कि s इज इक्वल्स टू वी कैन से 30 प्लस 26 प्लस 28 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इसका समेशन करता हूं तो आई विल बी गेटिंग माय दिस एरिया विल इक्वल्स टू 30 प्लस 20 होगा 50, 50 प्लस 20 होगा 70 एंड 70 प्लस 14 84। तो 84 by 2 it will be equals to we can say that 42 is a semi perimeter of this length, or we can say that triangle। उसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मैं डायरेक्टली इधर लिख दूंगा, इट विल बी 42 एंड s माइनस a, 42 माइनस 26 आंसर आएगा 16, 42 माइनस 28 आंसर आएगा 14 एंड 42 माइनस 30 करूंगा तो आंसर आएगा 12। जब मैं इसका आंसर निकालने जाता हूं तो आप इधर देख सकते हो कि इधर देखो 7 टूजा आएगा, इधर 6 टूजा आएगा, 7 इधर 6 आएगा। मतलब आप जब सभी का रूट्स निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स कर दोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको 42 एंड इंटू 8, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 28 इंटू एच। अब देखो हमको तो फाइंड क्या करना है, इनिशियली हमको एच ही फाइंड करना है, ठीक है। तो एच हम लोग फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली देखो इधर क्या होता है 7 इंटू 6 होता है एंड इधर 7 इंटू इधर मेरे पास 4 होता है, 7 एंड 7 कैंसिल एंड 4 एंड 2 जा हो जाएगा। मतलब आपका हाइट क्या आ जाएगा, इट विल बी 6 इंटू 2 एंड 6 इंटू 2 होता है 12 एंड मीटर्स, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर होगा बिकॉज सभी यूनिट्स हमको सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो बहुत इजी चीज है, क्या करना है आपको, पहले तो सेमी पैरामीटर मिल जाएगा, उसके बाद आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल को कंपेयर करना है एंड आपको हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा बट होता ऐसा नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर द हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर फिफ्थ क्वेश्चन व्हिच इज गिवन एज इट इज। सो हमको फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट इट इज लाइक a rhombus and rhombus has a shape filled with a green grass for the 18 cows। मतलब कि हमारे पास एक फील्ड है उसमें 18 काउज है, मतलब कि हमको हर एक काउ को कितना ग्रास मिलेगा वो कैसे पता चलेगा, तो कि व्हेन आई एम डिवाइडिंग टोटल एरिया ऑफ ग्रास अपॉन 18 तो मेरे को पता चल जाएगा कि हर एक काउ के पास इतना ग्रेस करने के लिए जगह होगा। तो हमको वो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सिंपल है कि हमको टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा एंड हमको रोम्बस बोला है। अब रोम्बस का कुछ पता नहीं है पर एक बात हमको रोम्बस का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि रोम्बस का शेप कैसा होता है, रोम्बस का शेप थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है। एक मिनट। सो नाउ दिस इज अ रोम्बस एंड हमको देखो रोम्बस का एक चीज होता है कि हर एक साइड क्या होता है, सेम होता है। तो हमको बोल दिया है कि रोम्बस इज 30 मीटर, मतलब कि सब कुछ क्या है 30 है 30 है 30 है एंड 30 है, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट डायगोनल मतलब कि एक डायगोनल हमको दे दिया है 48 दिया है, ठीक है। तो अब देखो हमेशा याद रखना कि रोम्बस के दोनों जो
ट्राइंगल्स बनते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर होंगे, मतलब कि एक ट्राइंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे को रोम्बस का एरिया मेरे को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले सेमी पैरामीटर फाइंड करता हूँ। सेमी पैरामीटर क्या आएगा मेरा 30 + 30 + 48 आएगा। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो इट विल बी 108 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी इक्वल्स टू वी कैन से 54। तो ये तो शायद तक गलत हो गया कि सही है। सो इट इज गुड एंड इट इज राइट। ऑलवेज रिमेंबर दैट हमेशा सेमी पैरामीटर हमारे तीन साइड से सही ही बड़ा ही आता है। ठीक है, तो हमको ये एरिया मिल जाएगा तो कि एरिया विल बी इक्वल्स टू वी कैन से अंडर रूट ऑफ इट विल बी 54 इंटू वॉट, तो कि 54 माइनस 48 मतलब के 454 माइनस 30 मतलब के इधर 24 आएगा एंड वापस 24 आएगा। ठीक है, तो उसका मतलब कि मैं जब इसमें करता हूं तो 24 तो 2 बार आ रहा है, मतलब 24 बाहर 2 भी बार मतलब के 48 एंड रूट 54, 9 6 54 मतलब बाहर और एक 3 भी आ जाएगा एंड रूट 6 आएगा। दिस इज अ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ये एरिया ऑफ वन ट्राइंगल कितना मिला हमको, क्योंकि एरिया ऑफ वन ट्राइंगल हमको इतना मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सो हम लोग जब इसका करते हैं तो इधर आपको 6 आएगा, ओ सॉरी, सो इट इज हैविंग अ 6, तो 6 हम लोग को बाहर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 54, तो 9 6 इधर 6 है मतलब कि 3 बाहर आएगा, 6 बाहर आएगा, 24 बाहर आएगा, तो आई विल बी गेटिंग द टोटल आंसर एज 24 इंटू 18। माई आंसर will become, it is very very easy, तो 24 इंटू 6 करूंगा इंटू 2 करूंगा इंटू मेरा आएगा 3, उसका मतलब कि 864 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बट ये तो क्या है, तो क्या देखो मैंने ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, तो क्या हमारे पास एक था तो अब 2 हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 से तो करना ही पड़ेगा। उसका मतलब कि टोटल एरिया फॉर द रोम्बस इज इक्वल्स टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या, तो क्या हमारे पास टोटल काउ है 18, उसका मतलब कि एरिया फॉर वन cow is equals to 864 divided by 18, मतलब मेरे को 864 डिवाइड बाई 18 करूंगा तो मेरे को 48 एंड इट विल बी हैविंग अ मीटर स्क्वायर, मतलब मेरे को टोटल एरिया मेरा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट अब मैं उसको 18 से डिवाइड करूंगा तो इट विल बी 48 मीटर स्क्वायर, यही हमेशा मेरा आंसर आएगा। तो ये बहुत इजीली आपको करना है एंड यू कैन डू इजी वे। ठीक है, पर आपको ये याद रखना है कि फाइनल स्टेप तक मेरे को इधर तक जाना है। बहुत सारे बच्चे इधर तक आके छोड़ देते हैं, पर इट इज नॉट गुड। हमको एक काउ का ग्रेजिंग एरिया फाइंड करना है तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी भी क्वेश्चन है बट सब लोग फिगर्स देख के डर जाते हैं। अब इसमें सिंपल क्या बोला है, कैन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ अ क्लॉथ ऑफ अ टू डिफरेंट कलर। ये याद रखना कि हमारे पास 10 ट्राइंगुलर पीसेस है बट उसमें 5 एक कलर का है एंड 5 दूसरे कलर का है। ठीक है, एंड उसका लेंथ हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। नाउ हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर पूछा है, टोटल क्लॉथ नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ट्रायंगुलर है तो एरिया पहले फाइंड कर देंगे। तो हमारा पहला तो क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू वी कैन से a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, it will be equals to we can say 50 plus 50 plus 20 and divided by 2, it is 120 divided by 2, answer will be equals to 60। मतलब कि हमारा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल प्लीज इट विल बी अंडर रूट ऑफ, इट विल बी 60 इंटू 60 माइनस 50 होगा 10, वापस 60 माइनस 50 10 होगा एंड वापस 60 माइनस 20 होगा, इट विल बी हैविंग अ 40। उसका मतलब कि 10 बाहर आएगा, मतलब 10 तो पहले ही बाहर आ जाएगा एंड 60 एंड 40 को मैं करता हूं तो इट विल बी 24 इंटू 100, मतलब क्या, तो कि 20 अंडर रूट ऑफ 2400 आएगा। उसका मतलब कि 10 बार 100 पीछे है, मतलब एक और 0 बार एंड 24 है मतलब 6 फोर जा, तो इंटू बाहर आएगा तो 2 आएगा एंड रूट 6, मतलब आपका आंसर आएगा ना वो 200 रूट 6 आपका एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस आएगा। अब हमारे पास दो कलर्स है। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन कलर क्या होगा, कि एरिया ऑफ वन कलर इट विल बी इक्वल्स टू 5, एक कलर के 5 इंटू 200 रूट 6, मतलब हमको आंसर मिलेगा 1000 रूट 6 फॉर वन कलर एंड सेम ऐसा कि 5 इंटू 200 एंड रूट 6, आंसर विल बी इक्वल्स टू 1000 ऑफ रूट 6 एंड इट विल बी हैविंग अ सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। इफ यू आर नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ रूट 6 देन इट्स ओके, यू हैव टू कीप इन रूट ओनली। ओके, सो ये चीज में बहुत कंफ्यूज मत होना
कि आपका जो एरिया है, टोटल एरिया नहीं पूछा है हमें, टोटल एरिया नहीं, बट कि हमको एरिया ऑफ ईच कलर ऑफ क्लोथ यूज पूछा है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो उसके बाद हमारा आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो कि हमको काइट बनाना है, ठीक है। उसका मतलब कि काइट हमको बनाना है, तो हमको क्या बोला है, तो कि काइट के ऊपर एक स्क्वायर है, नीचे जो है ना वो ट्राइंगल है, तो हमको ट्राइंगल जहां भी आता है हमको हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हमको काइट में क्या बोला है, इट इज हैविंग अ डायगोनल ऑफ 32, मतलब कि जो स्क्वायर होता है ना उसके डायगोनल हमेशा सेम होता है, तो इसका डायगोनल हमको 32 दिया है, ठीक है चलो हो गया। मतलब कि 32 बेस है, तो ये बाइसेक्ट भी करता है, मतलब इसका हाइट हो जाएगा 16 एंड इसका नीचे का हो जाएगा 32, ठीक है। उसका मतलब कि चलो ये एरिया वन एरिया टू तो बहुत इजी है, चलो मैं एरिया वन कैसे लिखूंगा, एरिया वन, अब इधर एक पूरा एक ट्राइंगल है एंड इसको मैं इधर देखता हूं, तो ये हाइट एंड बेस मेरे को पता है, मतलब कि हाफ इंटू हाइट, मतलब कि 16 इंटू बेस कितना है मेरे पास, तो क्या 32, इट विल बी 2, इधर 16 जा हो जाएगा, मतलब कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया, तो क्या मेरा एरिया ऑफ वन पार्ट हो गया। अब सेकंड, तो कि एरिया ऑफ सेकंड पार्ट वो भी क्या है, सेम है ना, बिकॉज स्क्वायर जब डिवाइड करता है डायगोनल से तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट करेगा, तो उसमें भी वापस क्या आएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। अब जो मेन काम बचा है वो क्या है, क्योंकि मेन काम हमारा जो इधर दिया है हमको एक ट्राइंगल उसका है, तो क्या हमको बेस दिया है एंड 6 हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, मतलब कि एरिया ऑफ थर्ड पार्ट क्या आएगा, तो पहले तो सेमी पेरीमीटर, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी एंड बाई 2, ठीक है। उसका मतलब कि 8 प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 8 20 बाई 2, सेमी पैरामीटर विल बी 10, मतलब कि एरिया ऑफ थर्ड क्या आएगा, तो कि एरिया ऑफ थर्ड विल बी अंडर रूट ऑफ, इट विल बी 10 इंटू 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, फिर 4 आएगा एंड देन 4 आएगा, ठीक है। उसका मतलब कि 4 दो बार है, मतलब कि 4 बार, 5 टूजा होता है, मतलब एक और बार 2 आएगा, मतलब कि 4 टूजा 8 एंड 8 रूट 5 आएगा मेरा आंसर, ठीक है। मतलब कि 8 रूट 5 का आंसर कितना आएगा, तो कि हम लोग जब 8 इंटू रूट 5 करते हैं, रूट 5 की वैल्यू 2.24 होता है, ठीक है। मतलब आपको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला, तो कि ये तो हमको आंसर मिला। अब क्या, तो कि जब मैं ये करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये 17.92 है, ये तो अलग है पार्ट थ्री, एंड पार्ट वन एंड पार्ट टू क्या है, मतलब एरिया वन एंड एरिया टू हमको 256 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। इफ हमको ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड बोला है, मतलब कि टोटल नहीं बोला है, मतलब हमको एरिया ऑफ वन एरिया ऑफ टू एंड एरिया ऑफ थ्री इंडिपेंडेंटली बताया है। बट इफ आपको क्वेश्चन में ऐड करके देते हैं फाइंड द टोटल एरिया ऑल्सो, टोटल एरिया क्या आएगा, इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस से रिस्पेक्टिवली, पर हमको इसमें बोला नहीं है तो वी विल नॉट डू दैट, ओके। ओके, उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक फ्लोरल डिजाइन है, फ्लोरल डिजाइन में सभी के सभी जो डिजाइन है ना वो हमेशा सेम है, तो हमको क्या करना है, देखो हम इधर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अब देखो 8 है, उन सभी में दो दो ट्राइंगल्स है, मतलब कि टोटल कितना है हमारे पास, तो क्या 16 टाइल्स हमारे पास है ट्राइंगुलर की, मतलब क्या कि टोटल एरिया फाइंड करना है पॉलिश का, तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ वन टाइल इंटू 16 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, मतलब कि 9 प्लस 28 प्लस 35 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मतलब कि 28 प्लस 9 करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा, इट विल बी 37 एंड 37 प्लस 35 करूंगा तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 72, ठीक है। तो 72 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो आंसर मेरा आएगा 36, सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब तो एरिया ही बचा है, तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट एरिया इज इक्वल्स टू 36, मतलब के अंडर रूट ऑफ इट विल बी 36 इंटू 36 माइनस 9 क्या होगा, तो इट विल बी 27, 36 माइनस 28 क्या होगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 8 एंड 36 माइनस 35 क्या होगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। 36 है, 36 बाहर आएगा तो क्या निकलेगा, तो क्या 6 निकलेगा, 8 बाहर है मतलब 4 टू जा तो 2 बाहर निकलेगा, रूट 2 तो रह जाएगा, एंड इधर 9 थ्री जा होगा मतलब 9 बाहर निकलेगा तो 3 आएगा, मतलब क्या बचा, इधर एक 3 बचा इधर एक 2 बचा, मतलब के अंदर आपका आ जाएगा रूट ऑफ 6, मतलब आपका आंसर 6 टू 12 या 36, तो 36 रूट 6 एक का आपको एरिया मिल रहा है एंड इट इज इन अ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट टोटल एरिया कितना आएगा, तो कि टोटल वी कैन से दैट इट विल बी 16 इंटू 36 एंड रूट
it will be 6. तो 16 into 36 root 6 करते हैं. And if you are having a calculator or if you are knowing the value of calci, you can get that हमको ये जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा. तो it will be इसका आंसर जो आएगा वो 88.18 आएगा. एंड 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आंसर कुछ ऐसा मिलता है कि इट विल बी इक्वल्स टू 1141.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो हमको टोटल एरिया ऑफ फ्लोरल मिल गया. अब क्या, तो कि हमको 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.5 रुपीज देना पड़ेगा. तो हमको 1141.2 के लिए कितना पे करना पड़ेगा. तो कि इट विल बी टोटल एंड इट विल बी टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1141.2 इंटू 0.5 मतलब कि डिवाइड बाई 2 होता है. मतलब आपको मिलेगा आंसर 105 पॉइंट इट विल बी 6 एंड रुपीज आई हैव टू पे फॉर द पॉलिशिंग द फ्लोरल डिजाइन फॉर माय कारपेट ओनली. ठीक है, मतलब हमारा जो टाइल्स है उसका पॉलिश करना है मेरे को, तो मेरे को टोटल रुपीज 705 मेरे को पे करना पड़ेगा. ओके, नाउ उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, विच इज आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक for the Heron's formula. ठीक है, तो what we have given is we have given the face that a field is in a shape of it is a trapezium. मतलब कि हमको पहले से बोल दिया है कि वो ट्रेपेजियम है, whose parallel sides are 25 सेंटीमीटर. मतलब कि एक ट्रेपेजियम बोला है. एंड ये क्वेश्चन है थोड़ा आपको नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान से खाली देख लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, सो पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. मतलब जो ऊपर होगा वो 10, नीचे होगा मतलब कि ऐसा आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो इट विल बी हैविंग अ 25. मतलब कि इधर जो होगा वो क्या होगा, तो कि इधर आपका 10 आएगा तो बचेगा कितना, तो कि इधर मेरा x है तो इधर मेरा कितना आएगा, तो कि इधर मेरा 15 माइनस एक्स. बिकॉज जब मैं इन तीनों का एडिशन करता हूँ मेरे को 25 मिलना चाहिए. एंड इधर क्या है, तो कि इधर मेरा 14 है, इधर मेरा 13 है. ऐसा हमको ग्राफ दिया है. तो अब इसमें है ना सबसे इजीएस्ट पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. आपको ऐसा कि एक पैरेललोग्राम बना दो. अब ये और ये तो पैरेलल है एंड दो पैरेलल लाइन से बीच में एक भी ट्रांसवर्सल होता है, तो उसका भी लेंथ 14 हो जाएगा. उसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो इट विल बी हैविंग हाइट इनटू बेस. मतलब बेस हमारा 10 हो जाएगा, मतलब कि 10 इंटू हाइट हमारा क्या है तो 14 है, मतलब कि 10 इंटू 14 हो जाएगा 140 हो जाएगा. ठीक है, तो ये राइट है रॉन्ग है हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. मतलब कि हाफ इंटू हमारे पास देखो, तो इधर हम लोग देखते हैं ना, तो इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हाइट नहीं है, ये जो मैंने किया वो गलत हो जाएगा. क्यों, बिकॉज मेरे पास 14 तो ये है एंड 10 तो ये है, मेरे पास हाइट कहाँ है, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा. ठीक है, मतलब आप लोग जब ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट विल बी नॉट हैविंग द बेस. मतलब कि आपको ऐसे आपको एक ट्रेपेजियम दिया है तो आपको ये हाइट करना पड़ेगा फाइन. तो हाइट तो कैसे होगा, तो क्या देखो ये पूरा 10 है ये 14 है, तो क्या होगा, तो कि इट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. मतलब कि इधर तो देखो ये पता है आपको कि ये 10 है तो ये कितना होगा 15, ये तो 13 है ही है एंड ये 14 है. तो पहले एरिया ऑफ हम लोग ट्राइंगल करते हैं, तो सेमी पैरामीटर मींस 14 प्लस 13 प्लस 15 एंड क्या होगा, तो इट विल बी डिवाइडिंग बाय 2. तो इट विल बी 15 प्लस 13 मतलब क्या, इट विल बी 28, 28 प्लस 14 इट विल बी 42. मतलब 42 डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल बी इक्वल टू 21. मतलब कि आपका सेमी पैरामीटर क्या आया, सेमी पैरामीटर मेरा आया 21. ठीक है, उसका मतलब अब मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी अंडर रूट ऑफ इट विल बी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. मतलब 21 मीन्स अब 21 माइनस 14 करूंगा 7 आएगा, 21 माइनस 13 करूंगा आंसर 8 आएगा, 21 माइनस 15 करूंगा आंसर मेरा 6 आएगा. ठीक है, तो जब मैं ऐसा करता हूं तो 7 थ्रीजा हो जाएगा, इधर 7 है, इधर 3 टूजा हो जाएगा, 8 टू 16 हो जाएगा. मतलब मेरा कौन सा थिंग बाहर निकलेगा, तो मेरा 7 बाहर निकलेगा, देन मेरा 3 बाहर निकलेगा, देन मेरा 2 बाहर निकलेगा एंड एक और बार मेरा 2 बाहर निकलेगा. ठीक है, मतलब कि इतना मेरा एरिया ऑफ वन ट्राइंगल मेरा जो गिवन है वो मेरे को मिल जाएगा. मतलब कि 7 थ्रीजा 21, 2 42, 2 84. मतलब कि मेरा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल. बट मेरे को हाइट फाइंड करना है, तो आप हाइट कैसे करोगे,
तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस, बेस तो हमारा 15 है एंड अल्टीट्यूड हमारा क्या है, तो अल्टीट्यूड हमको h ले लेते हैं, ये हाइट h एंड ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हाइट h हो जाएगा। उसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स 84 पता है, तो हाफ इंटू 15 इंटू वॉट, ओके इंटू हमारा h आएगा। जब 84 इंटू 2 करता हूं ना तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, एंड उसको डिवाइड करता हूं मैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मतलब कि 168 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 15 करता हूं तो मेरे को इक्वल्स टू h एंड इक्वल्स टू h कितना मिलेगा, मेरे को 11.2 एंड सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 11.2 सेंटीमीटर मेरा हाइट है एंड मेरा जो ये है वो मेरा बेस है। मतलब अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हो कि इट विल बी बेस इनटू हाइट, so it will be 11.2 into 10, तो माय आंसर विल बी 112 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को दोनों एरिया पता चल गए। अब क्या, तो कि टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 112 प्लस इट विल बी 84, सो माय आंसर विल बी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। टोटल एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जांपल इट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन फॉर योर सिलेबस है। सो ये 2 बार ट्राई करना कि आप देख सको एंड 2 बार सॉल्व खुद भी करने का ट्राई करना। ठीक है फ्रेंड्स, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन यू कैन comment me in a comment box and subscribe our channel for each and every updates for a 9th 10th 11th and 12th mathematics, chemistry and physics. Okay, have a good day.